मेरा प्रणाम. I would like to thank Professor Sudhir Jain for providing this opportunity to talk to you. मैं हमेशा सोचा कि मीडिया ने बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारा कंट्री में, and you are the best persons to convey to the rest of the country what is going to happen in the coming 3 days in the Akhil Bharatiya शिक्षा समागम. पहले अखिल भारतीय शिक्षा समागम के बारे में मैं कुछ विषयों को आपको मैं बताऊंगा इंग्लिश में, और इसके बाद मैं प्रोफेसर सुधीर जैन को रिक्वेस्ट करूंगा हिंदी में आपको बताने के लिए. ये पूरा प्रोग्राम हमारा यूजीसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूरा देश को जा रहा है, इसलिए हम दोनों हिंदी में और इंग्लिश में ये प्रोग्राम के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. और ये एक्सप्लेनेशन होने के बाद, ब्रीफिंग होने के बाद आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेसिटेशन. फ्रेंड्स, you all know that the national education policy was launched roughly about 2 years ago. By the end of this month, we will be completing 2 years of the launching of national education policy. Since then, many things have happened. First, of course, creating a nationwide awareness about the national education policy. A number of webinars, seminars were conducted, even though the whole country is going through the COVID pandemic. During that time also, the universities and colleges have risen to the occasion to create a lot of awareness about the national education policy. अब सबको पता है national education policy is a great vision document for all of us to transform the education in our country, so that India will become a technologically leading country in the world. India will become a Vishwa Guru for the rest of the world. That is the underlying theme of our national education policy. लेकिन education policy को implement करने के लिए we need to work out both short-term goals and long-term goals. There are some issues which will take time to implement. There are some issues, reforms that we can implement immediately. Jaisa, in the recent past, we have announced many such reforms, academic bank of credits for providing mobility to the students from one university to the other university, multi-entry and multi-exit scheme for the students. The basic idea here is to provide a lot of flexibility and freedom to the students to access high quality education. And that's the idea. And in order to do that, we have also brought out many regulations in the recent past from UGC. For example, you might have heard about twinning, joint and dual degree programs. Students who are studying in India can actually go abroad and then spend 1 or 2 semesters there, acquire the credits and come back. And the degrees can be given either by the Indian university or by both the foreign university and the Indian university. And recently we have also announced that UGC is working on internationalization of our education. We want our best institutes to go abroad and set up their campuses there. And we also want the best foreign universities to come to India and establish their campuses. Friends, you know that every year, lakhs of our students go abroad in search of high quality education. We want them to stay within Bharat, within India, but at the same time, access high quality international education. So there are many such reforms that we are
uh, bringing out in order to transform the higher education in India. But it is also necessary for us to stop and review how things are being done. And that is the purpose of this 3 days Akhil Bharatiya Shiksha Samagam. And in this 3 days program, we have nearly 400 heads of institutions, academicians, policy makers, heads of regulators, researchers, and many such people. They will be participating in these 3 days samagam. And what is a very happy thing for all of us is that this 3 day Samagam is going to be inaugurated by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Tomorrow he will be speaking to all of us, and we have 11 sessions in these 3 days discussions, 9 theme-based sessions, and then there are additional 2 sessions which talk about the success stories in implementing the NEP. So if I had to categorize these 9 themes, the first 3 themes, they will discuss on holistic and multidisciplinary education. Friends, you know that today, if we want to find solutions to the challenges, it is very important that the students have exposure to multidisciplinary education. And this is a global phenomenon. Uh, as a country, we should not lag behind. And that's the reason why UGC has come up with guidelines on how multidisciplinary education can be implemented in our educational institutes. The second one is, friends, you know that if we want to find solutions to many challenges that our country is facing, and also globally, there are so many challenges, be it climate change, be it the kind of pandemics that we are seeing, be it the energy security, the food security, and so on. For all these things, if we want to find solutions, we need to strengthen the research and innovation environment in our universities. So, the second theme of the session is going to be research, innovation, and entrepreneurship. Friends, you also know that globally, if you see, our country now stands at third position in terms of encouraging innovation and entrepreneurship. There are so many entrepreneurs who are setting up their startup companies. There are so many unicorns which are already working in India. Therefore, our university systems have to have improved research and innovation ecosystem. So, the second theme, the experts will be discussing on this. And the third one is the governance of our educational systems, and then the capacity building for our teachers, how to train our teachers so that they can adopt the new digital technologies that are coming up, how to train our teachers so that they adopt the new pedagogical approaches in order to make our students creative and also innovative. So these are the 3 important themes in the first 3 sessions: multidisciplinary holistic education, research, innovation and entrepreneurship, and governance and capacity building for teacher training. And in the second set of 3 sessions, we are going to discuss on quality and ranking of our universities, and also accreditation. Friends, if you see, because of various measures our government has taken in the recent past, many of our universities are now appearing in the global university rankings. It is very, very important to strengthen our pedagogical approaches and also the research and innovation in our universities. And also, we need to internationalize our education so that in terms of the global world rankings, our universities are found in among the top universities in the world. So experts will be discussing on what our universities are doing in order to improve the standards of education and also the ranking and quality of education
in our university. Friends, you know that there are so many students from the rural areas, from economically weaker sections. Not everybody may be able to come to a city and a town, get admitted in a university. There are millions of highly talented such students. But then our universities have the admission procedure where we can select maybe about 3% or 4% of the applicants. What about the remaining 95%, 96% of the students? They also have to have access to very high quality education in our country. And that can be done using modern technologies, digital technologies in our higher educational institutions. And that's the reason why in an important session titled as Digital Empowerment and Online Education, the experts will speak on what is UGC and our higher educational institutions are doing to take high quality education to the doorsteps of our students. Imagine if these millions of students are provided with high quality skill based education, it will transform our entire country. So, in this theme, digital empowerment and online education, the experts will be speaking on this. Friends, you also know that for various reasons, either because of the financial reasons, family reasons, many students may be dropping out of the university system, or they are not able to access high quality education. So, what can be done in the higher educational institutions to make our education equitable and accessible to all? Anybody who wants to study should be able to study. For example, why should a student who gets only 80%, 90% should be able to join in a university? What if I just pass my plus two? I come from a village background. My father was a teacher and a farmer in a small village. I know the village system, how difficult it is for students to focus on their education and get 90, 95%. But even if they get less percentage in their plus two, they are still highly talented students. So, what can be done in order to encourage every student to access high quality education? So, experts in this session will also be speaking about how to make our education highly accessible. And then in the last three sessions, we will be talking about promoting Indian languages and also the Indian knowledge systems. Friends, you know that because of uh, the colonial effect on our country, um, we have neglected our Indian languages in our educational system. It is very, very important that we promote our Indian languages as a medium in our higher educational institutions. Friends, if you see the top 10 countries in the world which have received the highest number of Nobel prizes, in those countries, the kids study right from the school level to the PhD in their own mother tongue. Why not we do in our country? Our Indian language system is very, very rich. It is very, very ancient, and it is evolving. So the experts will discuss about what efforts are being made in order to promote our Indian languages in higher educational institutions. And then you heard about Ayurveda. You heard about how India was a leading country in metallurgy, how India was making some of the biggest ships in the world, even before the world knew how to build big ships in various science and technology, astronomy, medicine, in different areas. India was a leading country. So it is very, very important that if we want to build and innovate in research and technology, we need to know how our ancient Indians have contributed to the developments in science and technology. And using this, we need to evolve new paradigms in research and technology. And that's the reason why the Ministry of Education has formed Indian Knowledge System Cell,
And this cell is working on how to sensitize our institutions in order to expose our students to our own rich treasure of Indian knowledge systems. Recently, UGC has also introduced the Indian knowledge systems as one of the papers in UGC NET. You know that those students who qualify in UGC NET can join in the universities for doing PhD, and we want to promote research in Indian knowledge systems. We want many students to do PhD in Indian knowledge systems so that they then become teachers in our educational systems and expose our students, teach our students the nuances of Indian knowledge systems. So this is going to be an important area of discussion in our Akhil Bharatiya Shiksha Samagam. And friends, you also know, as I mentioned in the beginning, that we need to internationalize our Indian education. There are a lot of efforts that are being done in order to internationalize our education. Just today in the newspapers, you might have seen our the minister, foreign minister, has said that we are working very seriously to encourage our Indian institutions to open campuses abroad and also encourage the foreign universities to come and establish their campuses in India. We are also going to have two sessions on success stories. Friends, I'm very, very happy to inform you that a large number of universities and colleges, they are already very, very keenly introducing the reforms of the national education policy. It is time for us to understand how some of these institutions have succeeded in implementing the NEP in a successful manner. And it's also important for us to see how they found solutions to the challenges that they faced while implementing the national education policy in their respective institutions. As part of these two sessions, we will try to understand so that these success stories will act as a template for the rest of the educational institutions to implement the national education policy. These 3 days are going to be very, very exciting days for us. We will also have question answer sessions during these theme based discussions, and we will try to cover the entire gamut of the national education policy during these 3 days. We hope that at the end of these 3 days, we will identify outcome based, action based points so that these can be distributed to all the educational institutions across the country for the rapid implementation of the national education policy. Friends, this is the briefing that I wanted to give you about the 3 day national convention that we are having here. I would like to once more tell you how happy we are all here assembling in the holy city of our country, Varanasi, to discuss about the transformation of higher education in our country. Thank you very much. And I request now Professor Sudhir Jain to speak in Hindi and explain. थैंक यू प्रोफेसर जगदीश। आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत। काफी दिन से मुलाकात नहीं हुई है, 2 महीने हो गए। हाँ, तो जल्दी जल्दी मिलना चाहिए, है ना। हमारे सिंह साहब हैं, उनको थोड़ा सा रिमाइंड कर दिया करिए अगर ज़्यादा। तो फर्स्टली प्रोफेसर जगदीश हमारे यूजीसी के चेयरमैन हैं, इनका मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ आने से पहले मैं पूछ रहा था कि आप पहले कभी विश्वविद्यालय में आए, तो बोले जब मैं आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसरी करता था तो आईआईटी बीएचयू के सिलसिले में अक्सर आते थे या कई बार आए, लेकिन जब जेएनयू में वाइस चांसलर थे या जब यूजीसी के चेयरमैन तब से नहीं आए हैं। तो ये विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मौका है कि प्रोफेसर जगदीश आज हमारे साथ हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे विश्वविद्यालय के जो बाकी पदाधिकारी हैं वो उनकी उपस्थिति का लाभ उठाएं, उनके अनुभव से फायदा उठाएं। बड़ा उनका एक अनुभव रहा है और मैं पर्सनली उनको जो है यहाँ आने से पहले कई सवाल पूछना शुरू कर दिया था मैंने।
मेरे लिए वो टीचर की तरह से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर जगदीश, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आप इतना अच्छा बोलते हैं कि मैं कोशिश करने की कोशिश करूंगा, मैंने नोट्स लिए और कोशिश करूंगा कि हिंदी में वो बातें कहूं जो आपने इंग्लिश में कही। जैसा कि आपने बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लगभग इन्हीं दिनों 2 साल पहले लॉन्च हुई और सबसे पहला काम जो इसमें हुआ वो हुआ कि काफ़ी सेमिनार्स वेबिनार्स वगैरह किए गए ताकि लोगों को पता चले कि इसमें है क्या। ये एक डॉक्यूमेंट है, वेबसाइट पर रखा हुआ है, लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी जब तक वार्तालाप नहीं हो तब तक लोग उसको ठीक से इंटरलाइज नहीं करते, तब तक आत्मसात नहीं करते। तो इस विषय में काफ़ी काम हुआ और आशा की जा रही है कि इस एनईपी की जो मुद्दे हैं, एनईपी में जो चीज़ें लिखी हैं, उससे देश की एजुकेशन में काफ़ी तब्दीली, काफ़ी बदलाव होने वाला है, काफ़ी इंप्रूवमेंट होने वाला है। और उसमें शॉर्ट टर्म भी एक्टिविटीज़ हैं जो इमीडिएटली कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म भी हैं। दोनों ही काम एक साथ करने होंगे और कई चीज़ों में यूजीसी ने ऑलरेडी काफ़ी काम शुरू कर दिया बड़ी तेज़ी से। जब से साहब यूजीसी में आए हैं तब से तो मतलब मेरे ख्याल से हर 15-20 दिन में, 1 महीने में एक नया डॉक्यूमेंट मुझे दिखाई देता है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो एटलीस्ट मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है जब से मैं देख रहा हूँ यूजीसी में बहुत ही तेज़ी से नई नई पॉलिसी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर काफ़ी काम हुआ है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट, कोई भी छात्र है 3 साल का कोर्स 2 साल में निकलना चाहे तो उसको कुछ दे दीजिए, खाली ना जाए। 3 साल में जाना चाहे, 1 साल में जाना चाहे। तो एक थाली वाला जो खाना होता था कि भाई थाली में 3 सब्जियां, 2 दाल, 1 कढ़ी चावल मिलेगा, पूरी मिलेगी, उसकी जगह बुफे टाइप सिस्टम हो गया। आपको जो मन है वो खाइए और जो उचित आपके लिए है, आपके स्टमक के हिसाब से जो ठीक समझते हो खाइए। वही छात्रों के साथ थोड़ी कोशिश की जा रही है कि जो लोग 2 साल पढ़ सकते हैं, 3 साल पढ़ सकते हैं, उस दिशा में जाए। और कोशिश है कि एक अच्छी एजुकेशनल व्यवस्था हमारे देश में बने जिससे कि देश आगे जाए। एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यूजीसी ने की है वो है कि आप 2 विश्वविद्यालय या 2 कॉलेज मिल करके पढ़ा सकते हैं। 1 साल हमारे यहाँ पढ़े, दूसरे कहीं जगह पढ़े, या 2 साल वहाँ पढ़े, 1 साल यहाँ पढ़े, और फिर डिग्री एक जगह से मिल जाए या दोनों जगह से मिल जाए। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी है। पहले इन चीज़ों में बड़ी सख्ती थी, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इस सबको, सिस्टम को ढीला किया गया। सबको काफ़ी मुझे करेक्ट कर दीजिएगा प्रोफेसर जगदीश अगर मैं कोई चीज़ गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ यूजीसी के काम को। तो मेरे ख्याल से काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है और कोशिश की है कि हम लोग थोड़ा हौसले के साथ आगे बढ़ें। हमारे जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें थोड़ी हिम्मत है वो बाहर जाके पढ़ाएं, बाहर जाके कॉलेज खोलें, और जो बाहर के जो अच्छे कॉलेज हैं वो इंडिया में आके अपनी एस्टेब्लिशमेंट करें और एक कंपटीशन हो। अगर हमारे पास देश के बाहर के लोग आए और एक अच्छी यूनिवर्सिटी यहाँ पर खोलें तो हमारे लिए कंपटीशन होगा। हमारा छात्र, हमारे टीचर्स कंपेयर करेंगे और हमारी भी क्वालिटी बढ़ेगी। काफ़ी स्टूडेंट्स देश के समय विदेशों में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जिससे 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो कम उम्र में बच्चे जब बाहर जाते हैं तो एक काफ़ी कष्ट उनको भी होता है, माँ बाप को भी कष्ट होता है, और दूसरी चीज़ उनका जो कल्चरल ओरिएंटेशन है, अगर कभी कच्ची उम्र में बच्चा बाहर जाता है 16 साल की, 17 साल की, 18 साल की, तो वो बहुत अच्छी सुविधाजनक स्थिति नहीं है। और दूसरा, देश का काफ़ी पैसा इसमें जाता है। काफ़ी जो ट्यूशन फी और बच्चे के पढ़ने के ऊपर जो खर्चा होता है वो हमको डॉलर में देश को खर्च करना पड़ता है। तो इस सबको देखते हुए अगर हमारी एजुकेशनल सिस्टम में रिफॉर्म्स हो, एक्सपेंशन हो, हमारे यहाँ विदेशी यूनिवर्सिटी यहाँ बैठे हैं, हम विदेशों में बैठे हैं, तो धीरे धीरे एक सिस्टम हो जहाँ पर हमारे स्टूडेंट तो जा रहे हैं, कम जाए, लेकिन विदेश के स्टूडेंट यहाँ पर खूब आए पढ़ने के लिए, और एक मोर इक्विटेबल, एक मोर फेयर एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए। इसमें भी काफ़ी काम यूजीसी ने किया, काफ़ी बोल्डली ये सब इनिशिएटिव लिए गए हैं। ये जो 3 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है इसमें लगभग 400 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स, आईआईटीज के डायरेक्टर्स, यूजीसी, एआईसीटी और जो हमारी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उनके सीनियर लोग, गवर्नमेंट के जो सीनियर लोग एजुकेशन से डील करते हैं, वो सब लोग यहाँ पर 400 लोग 3 दिन तक फुल टाइम पूरे दिन यहाँ पर स्पेंड करने वाले हैं वार्तालाप करने के लिए। और इसमें टोटल 11 सेशन, मोटे मोटा हिसाब जो है वो 11 सेशन का है, जिसमें 9 सेशन जो है वो थीम्स पर हैं, और 2 सेशन में ये है कि भाई आपने कुछ अच्छा काम किया तो बताइए, सक्सेस स्टोरी बताइए, आपने क्या अच्छा काम किया, ताकि और लोग सब सुने और आपके
अच्छे काम के अनुभव को लेकर के अपने यहाँ जा सके। तो इसमें जो मोटी मोटी जो थीम्स हैं, एक तो है कि होलिस्टिक एजुकेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। जो अभी क्या सोचना है कि हमारे यूनिवर्सिटीज में कोई स्टूडेंट आता है, बोलता है कि मुझे मैथमेटिक्स पढ़नी है, या मुझे फिजिक्स पढ़नी है, या मुझे सोशल साइंस पढ़नी है, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है, हम उसको पढ़ा देते हैं। लेकिन जब वो बाहर निकल के जाते हैं तो जो समस्याएं होती हैं वो एक सब्जेक्ट की नहीं होती। और जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको काफी चीजें मालूम होनी चाहिए। जैसे कि मैं अपना पर्सनल उदाहरण लेता हूं कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी, लेकिन उस सिविल इंजीनियरिंग का मैं कितना इस्तेमाल आज करता हूँ। मुझको आज अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, मुझे अपने फाइनेंस के रिपोर्ट्स देखने पड़ते हैं, तो उसके लिए मुझे तो वो चीज चाहिए जो कॉमर्स में, बीकॉम में पढ़ाई जाती है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण दे, तो जब हमारे छात्र छात्राएं बाहर मार्केट में जाते हैं तो उनकी जो एजुकेशन अगर बहुत नैरो होगी, बहुत ही संक्षिप्त होगी, किसी एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होगी, तो वो उनके लिए उचित नहीं। इसी तरह से जो हमारा साइंटिस्ट है वो खाली साइंस ही नहीं सीखे, बल्कि उसको थोड़ा इतिहास के बारे में मालूम हो, थोड़ा कल्चर के बारे में मालूम हो, थोड़ा अपनी देश की धरोहर के बारे में मालूम हो, लिख सके, बोल सके, बहुत सारी चीजें हों। तो इस दिशा में जो कुछ सेशंस हैं, दूसरे कुछ सेशंस हैं जो रिसर्च और इनोवेशन के हैं। जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करना है। ये जो रिसर्च होती है, क्यों होती है रिसर्च इसलिए नहीं होती कि पर्चे छाप दिए जाए। पर्चे छापने के लिए सरकार क्यों पैसा खर्च करेगी पब्लिक का? जो हमारे पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे शोध छात्र हैं, या जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, वो जब रिसर्च करते हैं तो पेपर छापते हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर छापने के लिए रिसर्च की जा रही है। रिसर्च की जाती है कि उससे थोड़ा हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो, हमको कुछ नई बात समझ में आए, और वो जो नई बात समझ में आएगी उससे हम समाज को, इकोनॉमी को, लोगों की स्थिति को और इम्प्रूव कर सकें। तो जो दूसरी चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप। आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम को और अच्छी तरह से कैसे करेंगे, ये इनोवेशन है। और एंटरप्रेन्योरशिप है कि आप किसी आइडिया को लें और उस आइडिया की मार्केट में रिक्वायरमेंट है, लोगों की रिक्वायरमेंट है, उस आइडिया को वहां तक पहुंचाएं और उससे लोगों को लाभ होगा। जैसे कि आप सब आजकल यूज करते हैं, ऑनलाइन चीजों को खरीदते हैं, या कुरियर सर्विस करते हैं, या उबर वगैरह की जो टैक्सी सर्विस को यूज करते हैं। इससे क्या हुआ है? इससे लोगों की सुविधा बढ़ी है। तो इस तरह से एक हमारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि जब आप रिसर्च करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है, उससे आप इनोवेट करते हैं, उसी चीज को कैसे और बेहतर कर सकते हैं। और जब ये चीजें आइडियाज होते हैं आपके, तो आप कहते हैं इसको एक बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट करना है, ताकि हम लाखों या करोड़ों लोगों तक पहुंचा पाए। वो एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमारी यूनिवर्सिटीज में कैसे ये आगे होगा, इसके ऊपर कुछ सेशंस होंगे। आज आप अखबार में अक्सर पढ़ते हैं कि एक वर्ड यूनिकॉर्न पैदा किया गया है। यूनिकॉर्न का मतलब आजकल जिस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है कि अगर किसी कंपनी की हैसियत $1 बिलियन, करीब 7,500 करोड़ उस कंपनी की हैसियत हो, तो उसको हम कहते हैं यूनिकॉर्न हो गया। तो आज जब हम काउंट करते हैं तो पाते हैं कि इंडिया में बहुत यूनिकॉर्न, अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, और अक्सर अखबारों में आप पढ़ते हैं। तो हमारे लोग कंपनियां बना रहे हैं और उन कंपनियों की हैसियत बढ़ रही है, बढ़ती जाएगी, लेकिन उसको और तेजी से बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस में ऐसी एजुकेशन प्रणाली हो, ऐसा एक स्टूडेंट में हौसला, ऐसा एक कॉन्फिडेंस हो कि वो ये ना कहे कि हमें कहीं क्लर्क बनना है, कहीं नौकरी करनी है, या हमें यूपीएससी का एग्जाम दे करके कहीं नौकरी बननी है, बट वो कहे कि हमें ये समस्या मिली, इस समस्या को हमने सॉल्व किया, और इस समस्या को सॉल्व करके अब हम इसको मोनेटाइज करेंगे, इस समस्या को हम जनता तक ले जाएंगे, और जनता को भी लाभ होगा, जनता भी इसके थोड़े पैसा खर्च करेगी, और उससे एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करेंगे। तो कुछ सेशन इसके ऊपर है, और कुछ सेशन है गवर्नेंस ऑफ एजुकेशन। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे जो कॉलेजेस हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो किस तरह से चलती हैं, किस तरह से चलें, कैसे उनके सिस्टम्स इंप्रूव हों। आपने अच्छे टीचर्स और अच्छे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, आपने उनको अच्छी लेबोरेटरीज और अच्छी क्लासरूम्स दे दिए, लेकिन उससे काफी नहीं है। अगर आपने अपने स्टूडेंट्स और टीचर्स को एनकरेज करने का एक वातावरण नहीं क्रिएट किया, अगर आपने एक ऐसा माहौल क्रिएट नहीं किया कि हमारे स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस के साथ नई चीजें सीखें, हमारे टीचर नई चीजें सिखाएं, तो गवर्नेंस के ऊपर कुछ सेशंस हैं। और उसमें ये भी है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो कैसे आजकल की जो नई ये शिक्षा के नए नए मेथड्स आ गए हैं। जब मैं स्टूडेंट था,
आप भी काफी लोग जब स्टूडेंट थे तो टीचर आते थे चौक से क्लास ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना शुरू कर देते। अब आजकल तो कंप्यूटर से क्लास चलने लगी है, आजकल तो डिस्टेंस एजुकेशन होने लगी है। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि पहले होता था कि टीचर हमें पढ़ाता था और फिर हमको कुछ सवाल करने के लिए थे, कहता भाई हमने आपको पढ़ा दिया, अब इस सवाल को आप घर पे करके देखो कि आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया। अब उल्टी प्रवृत्ति, एक नई उल्टी तरीका ढूंढा गया है कि हम स्टूडेंट को पहले कहेंगे एक समस्या है, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, तो स्टूडेंट उस पर सिर्फ फोड़ता है, अपना दिमाग खपाता है और कंफ्यूज होता है, और फिर वो जब क्लास में आता है तो पूछता है ये सवाल मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे दिक्कत हो रही है, मैं समझ में नहीं आ रही, तो प्रोफेसर कहता है ऐसे होगी, इसमें ये प्रॉब्लम है। नाउ स्टूडेंट को ज्यादा आसानी से समझ आएगा। आपने जैसे कॉमर्स का एग्जांपल लूं, आपने पहले बता दिया कि हमारे कॉमर्स में जो हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस है उसमें ऐसे डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, बैलेंस शीट ऐसे बनती है, उससे कहा जाओ अब ये सवाल करके लाओ बैलेंस शीट, उसकी जगह आपने उसको एक बैलेंस शीट दे दी, बोले इसको समझ के आओ। वो कंफ्यूज हो रहा है, परेशान हो रहा है, वो आकर के पूछता है सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। तो जब आप उसको बताते हो, इसको फ्लिप क्लासरूम बोलते हैं, उल्टा आपने पहले सवाल कराया और बाद में उसको समझाया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो पिछले 10-20 साल में दुनिया में डेवलप हुई हैं एजुकेशन के बारे में। तो उसके बारे में कुछ वार्तालाप, कैसे हमारे टीचर्स नए मेथड्स को अडॉप्ट करें, क्योंकि जो व्यक्ति 10 साल से 20 साल से किस तरह से पढ़ा रहा है उसको नया पढ़ाने के लिए भी एक माइंडसेट चाहिए, एक नया सोच चाहिए। रैंकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है देश के लिए। एक कंसर्न है कि हमारा देश अगर डेवलप्ड कंट्रीज की आगे की पंक्ति में खड़ा होगा तो उसके लिए हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी आगे खड़ी होंगी। हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पीछे हो, देश आगे खड़ा हो, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए पिछले सालों से, कई सालों से काफी जोर रहा है सरकार का कि हमारी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग्स इंप्रूव हो। इनफैक्ट अभी पिछले दिनों राष्ट्रपति जी ने अपने यहाँ कुछ वाइस चांसलर्स और यूजीसी चेयरमैन वगैरह की एक मीटिंग की थी, और उसमें भी रैंकिंग के ऊपर काफी डिस्कशन हुआ था कि हमारी रैंकिंग की क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे इम्प्रूव करें उसको। जो साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग समस्या सामने रखी कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो हर तरह के होते हैं, कुछ गरीब परिवारों के होते हैं, कुछ रूरल परिवारों के होते हैं, कुछ घर की स्थिति अच्छी नहीं होती, और जब वो अगर थोड़े कम मार्क्स लेकर के आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे नहीं जा सकते। लेकिन हमारे जो कॉलेजेस हैं उसमें जब एडमिशन होगा तो मेरिट से ऊपर के जो छात्र हैं उनको ले लिया जाएगा, नीचे वाले छात्र छूट जाएंगे। तो एक जो जगदीश जी ने बहुत इंपॉर्टेंट इशू यहाँ रेज किया कि भाई अगर देश में 100 बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उसमें आपकी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस सिर्फ 3, 4, 5% बच्चों को ही एडमिशन दे पाएंगे, क्योंकि आपके सीट लिमिटेड है, आपके 100 सीट नहीं होगी, तो जो 94, 95, 96, 97 बच्चे जो छूट गए हैं वो कमजोर नहीं है। क्या उनको भी हम मौका दे सकते हैं? क्या उनको भी सीखने की स्थिति पैदा कर सकते हैं? और इसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा जोर दिया जा रहा है। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात चल रही है, मुझे नहीं मालूम कहाँ तक पहुंची है वो बात। आइडिया ये है कि आप जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में या किसी भी विश्वविद्यालय में एनरोल करते हैं, आप इस डिजिटल विश्वविद्यालय में एनरोल करें और सारी टीचिंग आपकी डिजिटल विश्वविद्यालय के थ्रू हो, और आप जब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर लें तो आपको डिग्री या डिप्लोमा जो भी मिल सके वो मिल जाएगा। तो एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने डिस्क्राइब की वो ये कि हमारा जो 200 साल का जो पीरियड रहा जिसमें हमने अंग्रेजी पर बहुत जोर दिया, जिसमें हमने ये माना कि एजुकेशन का मतलब अंग्रेजी है। हम ये मानने लगे कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वो अंग्रेजी जानता है और अंग्रेजी जानता है तो पढ़ा लिखा है। ये पूरी तरह से उचित नहीं है। और साहब ने एग्जाम्पल दी कि भाई देश, दुनिया के जो 10 देश हैं जिनमें सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिले, वो देश हैं जिनमें बचपन से लेकर के पीएचडी तक पूरी शिक्षा उनके अपनी मातृभाषा में होती है। तो देश थोड़ा शिक्षा नीति का भी पार्ट है, यूजीसी की भी काफी एफर्ट हो रही है, और हमारे जो और भी एआईसीटी वगैरह भी इसमें काफी जोर दे रहे हैं कि क्या हम अपने छात्र छात्राओं को उनकी मातृभाषा में पढ़ा सकेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है कि क्या हम अपनी विरासत को, हमारी जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, जो हमारे पूर्वज जो साइंस में, मेडिसिन में,
और बहुत सारे फील्ड्स में जो बहुत अच्छा काम एक टाइम पर करते थे। आपने एग्जाम्पल दी आयुर्वेदा में, जैसे कि जब चरक और सुश्रुत हमारे देश में बहुत अच्छी मेडिसिन और सर्जरी की बातें करते थे, उस समय यूरोप में मेरा ख्याल है कि ऐसी स्थितियां नहीं थी। इसी तरह से मेटलर्जी में हम लोग बहुत आगे रहे हैं। इसके बारे में तो पूरी दुनिया मानने लगी है कि हिंदुस्तान मेटलर्जी में बहुत आगे रहा है। शिप बनाने में काफी आगे रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग काफी आगे रहे हैं। इन चीजों में जो हम आगे रहे हैं, हमारे छात्र छात्राओं को उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में प्राइड होना चाहिए, उसके बारे में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में हम जब मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो हम वहां से शुरू करते हैं जहां से यूरोपियंस पढ़ाते हैं। हम उसको वहां से शुरू करते हैं जहां से हमें अंग्रेजों ने पढ़ाना शुरू किया। हम ये नहीं बताते कि हमारे पुराने ग्रंथों में मैथमेटिक्स के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, अगर वो भी थोड़ा सा बताएं। हम ये नहीं कहते कि मॉडर्न मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई जाए, लेकिन मॉडर्न मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए थोड़ा सा हमारा जो वैदिक काल रहा है, जो हमारा एंशिएंट टाइम रहा है, उसमें जो मैथमेटिक्स के बारे में अच्छा काम हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा बताएं, तो हमारे छात्र छात्राओं में अपने देश के प्रति, अपने कल्चर के प्रति थोड़ी सद्भावना बनेगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आपकी जड़ें कमजोर होंगी, जब आपकी जड़ें गहरी नहीं जाएंगी, तो आपको थोड़ी बहुत आंधी जो है वो उड़ा के ले जाती है। जब आपको ये पता है कि हमारे बाप दादे भी बहुत होशियार थे, वो भी बहुत अच्छी साइंस करते थे और हमारी इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी, हमारे यहाँ इतनी गरीबी नहीं थी, हमारे यहाँ भी अच्छी मेडिसिन चलती थी, है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर आप जूझने के लिए ज्यादा आसानी से तैयार हो जाते हैं। आप थोड़ी बहुत हवा से, थोड़ी बहुत आंधी से, अंधड़ से गिर नहीं जाते हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा होगी। और साहब ने बताया कि ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इसके ऊपर तो एनईटी शुरू हो गया। मतलब जो एक एग्जाम होता है, जिस एग्जाम के थ्रू पीएचडी में एडमिशन मिलता है, तो एग्जाम अभी फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में इस तरह से होता है। तो एक इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर भी एग्जाम शुरू हो गया है, ताकि जो छात्र हमारे उस विषय में ज्यादा गहराई में जाना चाहते हैं, वो एग्जाम करके उन विषयों पर हमारे विश्वविद्यालयों में पीएचडी कर सकेंगे। ऐसी व्यवस्था की गई है। तो मेरा ख्याल है संक्षेप में आपने जो बताया, मैंने कोशिश की उसको हिंदी में बताने की, और अगर कुछ छूट गया हो तो जगदीश जी मेरी अपॉलॉजी, और प्लीज कंप्लीट एनीथिंग आई माइट हैव मिस्ड। थैंक यू। धन्यवाद सुधीर जी। बिफोर यू आस्क क्वेश्चन, सुधीर जी ने बीच में डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में कहा, क्या स्टेटस है। डिजिटल यूनिवर्सिटी के काम बहुत तेजी से चल रहा है। हमारा उम्मीद है कि, हमारा गोल है कि जनवरी 2023 से हम ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स को शुरू करने के लिए, और ये डिजिटल यूनिवर्सिटी में एजुकेशन इतना फ्लेक्सिबल होगा और बहुत एमर्जिंग एरियाज में भी डिग्रीज मिलेंगे आपको डिजिटल यूनिवर्सिटी में, जैसा फिनटेक हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मीडिया स्टडीज, जर्नलिज्म। आप सब लोग स्टूडेंट्स बन सकते हैं डिजिटल यूनिवर्सिटी में, आपका स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। आप सोचिए 100 साल के पीछे किसी को भी नहीं पता होगा आज कैसी जॉब्स होगा। नोबडी कुड हैव इमेजिन्ड 100 years ago। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतना तेजी से एवॉल्व हो रहे हैं, 10 साल के बाद कैसे एम्प्लॉयमेंट, कैसी जॉब्स होगा हमको पता नहीं। इसीलिए कॉन्स्टेंटली हमारा स्किल्स को अपग्रेड करना और नया स्किल्स को एक्वायर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप जैसा लोग जो काम कर रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना, कॉलेज में ज्वाइन करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू होगा, आप जब भी आप पढ़ना चाहिए तो आप आपका कंप्यूटर खोल के डिजिटल यूनिवर्सिटी में पढ़ के आपका स्किल्स को अपग्रेड करके आपका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्रीज को आप एक्वायर कर सकते हैं। मैं देखना चाहता हूं आप सभी लोगों को डिजिटल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जैसा। और इसके साथ और एक थीम भी है, मैं वो नहीं बताया मेरा ब्रीफिंग में, ये है कि स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है। देखिए, हमारा प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि अगले साल में 10 लाख जॉब्स को हम फिलअप करना है। लेकिन हम ये तो गवर्नमेंट जॉब्स हैं,
सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब देना इतना वो तो लिमिटेड होता है। ये स्किल डेवलपमेंट से हम लोगों को हम ट्रेन करना चाहते हैं कि दे विल बिकम सेल्फ एम्प्लॉयबल। ये स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी का एक गोल है कि हम जाके जॉब देने के लिए हम नहीं पूछेंगे, लेकिन हम ही खुद काम करके सेल्फ एम्प्लॉयबल हम होंगे। और जैसा सुधीर जी ने बताया एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें ये एम है कि हम पढ़ने के बाद जॉब के लिए नहीं दौड़ेंगे, लेकिन हम ही हमारा एंटरप्राइज को शुरू करके हम ही नई जॉब्स को हम शुरू करेंगे। ऐसा ये भी एक थीम है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में आपने बताया, तो मैं हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके बताया, लेकिन आप कुछ बताना चाहिए तो हिंदी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद महोदय। पत्रकार बंधुओं से मेरा अनुरोध है, अगर तो प्रिंट मीडिया के लोग पहले सवाल कर लें, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग अपने कैमरे आगे ला सकते हैं। तो अगर सवाल है तो आप अपना परिचय दें और सवाल पूछें। हाँ, अपना पहले प्रिंट मीडिया के सवाल कर लीजिए, उसके बाद कैमरा से जितना जैसे कहेंगे खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। अपना परिचय दें और सवाल करें। गुड इवनिंग सर, मैं अरविंद मिश्रा, हिंदुस्तान अखबार से। एक जिज्ञासा मेरी ये है कि जो 3 दिन का सेमिनार होगा उसकी कवरेज के लिए मीडिया के प्रवेश की क्या व्यवस्था, अभी तक कोई हम लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई है कि हम वहाँ स्पॉट पे कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि एंट्री की बहुत प्रॉब्लम होती है, सिर्फ एक कार्ड होता है और उसके अलावा अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। तो एक ये सबकी जिज्ञासा होगी, यहाँ जितने साथी बैठे हैं अभी कार्ड भी नहीं है। हाँ। तो देन हम कवरेज कैसे करेंगे, उसके लिए एक थोड़ी सी स्पष्ट मार्गदर्शन हो जाए हमारे पूरी एक मीडिया। तो मेरा निवेदन है कि हमारा पूरा 3 दिन का प्रोग्राम हमारा यूजीसी का यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग हम करेंगे। अपने आपका ऑफिस में, घर में बैठ के पूरा इसको देख सकते हैं। और आपको कुछ प्रश्न है तो आप ये यूट्यूब चैनल में आप टाइप कीजिए, दीक्षा जी है, दीक्षा जी आपका प्रश्न हमको बता देंगे और आपको हमारा समाधान हम दे देंगे। सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कैसे होगा? हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। सर आपको भी कन्वीनियंट होना चाहिए और आपको पूरा प्रोग्राम भी आपको एक्सेसिबल होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कैसे कवर हो पाएगा? यूट्यूब से सवाल जवाब में नहीं हो पाता है। नहीं, हम ये भी कर सकते हैं, हम बात करेंगे कि ये 3 दिन का होने के बाद हम एक बार हम मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आपको प्रश्न है? और मेरी दूसरी जिज्ञासा ये थी, क्योंकि इस वक्त आप भी यहाँ उपस्थित हैं और वीसी सर भी हैं, तो बीएचयू में एक सेंटर है, नेशनल फैसिलिटी सेंटर फॉर ट्राइबल हर्बल मेडिसिन। ये 12 साल से काम कर रहा है। इसने कैंसर से लेके, मधुमेह से लेके और स्मृति क्षय जैसे रोगों पर बड़ा काम किया है, दवाएं खोजी हैं। और इस 12 साल में 2 बार यूजीसी की टीम आई, उसने सारी व्यवस्थाएं देखी और ये कहा कि हाँ, इस सेंटर को स्थायी कर देना चाहिए, बीएचयू का हिस्सा बना लेना चाहिए। बावजूद उसके ये सेंटर अभी भी एक हवा में ही लटका हुआ है। ऐसा क्यों हो पाया? मेरा सुझाव है कि जो हमारे स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस हैं, वो हम जगदीश जी से कभी फुर्सत में कर लें। आज का जो मौका है वो एक अच्छा मौका है, अगले 3 दिन के कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें। मेरी भी बहुत सारी शिकायतें हैं, बीएचयू के प्रोफेसर की बहुत शिकायतें हैं, स्टूडेंट्स की बहुत शिकायतें हैं, यूजीसी से, यूजीसी को हमसे बहुत शिकायतें हैं। मेरे ख्याल से ये सब का समय नहीं है ना। चलिए अपना परिचय दें। देखिए, सुधीर जी ने जो बताया इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स जो है, मैं खुद सुधीर जी से साथ बैठ के मैं देखूंगा क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। बीएचयू देखिए हमारा देश का बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। हम भी चाहते हैं कि बीएचयू ग्लोबली शुड बिकम ए टॉप यूनिवर्सिटी। जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं सुधीर जी के साथ बैठ के हम सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे। होगा सिर्फ या स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ? ये सभी यूनिवर्सिटीज को अप्लीकेबल है। मान लीजिए मैं एक 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम में ज्वाइन किया, मैं दूसरा साल का होने के बाद मेरा पेरेंट्स ने किसी दूसरा सिटी को ट्रांसफ़र होके चले गया। अब मौका मिलेगा
मुझको दूसरा सिटी को जाके दूसरा यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर में ज्वाइन होने का। इसके पहले ये मौका नहीं था। जी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को फैमिली प्रॉब्लम होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, ड्रॉप करने के नहीं, लिए। वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ हम्म, कि स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्चा बिहार में पढ़ रहा हो correct। और वो बीएचयू आ गया, हम्म, बीएचयू आ गया तो बीएचयू के पास सीट ही नहीं है। हाँ ये देखिए, प्रॉब्लम क्या है? हाँ देखिए, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर आर सीट्स अवेलेबल इन ए गिवन यूनिवर्सिटी। ऐसा भी हो सकता है अच्छी यूनिवर्सिटीज में भी एक साल होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट करते हैं दूसरा यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, तो वो वैकेंसी जो है वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये सुविधा हम अरेंज कर रहे हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, टीचर्स होगा, वो यूनिवर्सिटीज को यूजीसी ये भी परमिशन दे रहा है कि आप सुपर न्यूमररी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं, 5%, 2%, 3%, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है। बॉटम लाइन ये है कि जितना हम स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके उतना हम करना है। जगदीश, ये जो डिजिटल यूनिवर्सिटी की आपने बात की है, ये डिजिटल यूनिवर्सिटी में जो डिग्रीज या डिप्लोमा या जो भी सर्टिफिकेट्स मिलेंगे उसकी क्रेडिबिलिटी इक्विवेलेंट रहेगी जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज के, या उसमें कुछ एक आप चेंजेस करेंगे या बिल्कुल बिल्कुल इक्विवेलेंट रहेंगे और बहुत अच्छी इमर्जिंग एरियाज में ये डिग्रीज होगा। मेरा ख्याल में डिजिटल यूनिवर्सिटी डिग्रीज बहुत पॉपुलर होगा और यूजीसी इक्विवेलेंस भी देंगे। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए डिग्री फ्रॉम ए फिजिकल यूनिवर्सिटी एंड डिजिटल यूनिवर्सिटी। सर ये नई एजुकेशन पॉलिसी में जो सीनियर लोग हैं, बहुत सारे देश के ऐसे लोग हैं कि जो कि प्रोफेशनल्स हैं, तो उनको अगर उनके अनुभव का अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो उसके लिए क्या कोई व्यवस्था है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जैसा एम्प्लॉइज है एक मीडिया हाउस में, जी आप पीएचडी करना चाहते हैं, जी कल ही मैं अनाउंस किया कि जी। आप पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज में। जी ऐसी सुविधा आईआईटीज में अभी है लेकिन हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम में नहीं है। तो सर उसके लिए कुछ किया? अरे सामने से हटो यार, हेलो बात कर रहे तो भाई, अरे सामने से हटो भैया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से मेरा अनुरोध है कि सवाल जवाब का जो चरण है वो जो भी चल रहा है उसे पूरा होने दें। ये रखने के बाद आप अरे सामने से हटो यार भाई, अरे बात करने तो थोड़ा सामने से हटो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से मेरा अनुरोध है कि सवाल जवाब के चरण को भी चलने दें। मैं आप सबसे बात करूंगा। आप माइक रख के आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। आप बैठ जाइए। अभी सब है ये, आप थोड़ा पीछे जा सकते हैं थोड़ा। हाँ, तो आप प्रश्न पूछ